So dear students, today we are going to discuss unit number 5, theoretical distribution. In this, three different concepts are there. One is binomial distribution, Poisson distribution, and normal distribution. So today we are going to discuss the binomial distribution concept. So in binomial distribution, what are the different types of model which are problems are available that I am giving you. So just try to practice these model problems. Once you understand these model problems, you can do any problem. So before going to the concept, please subscribe my channel Anu Computer Education to get further updates. So now, without wasting further time, directly we are going to the model number 1 problem in binomial distribution. So just once you look at the problem, so once you can take the screenshot of the problem. So do along with me so that then we can do any problem. So first read the question. 10 unbiased coins are tossed simultaneously and find what is the probability of obtaining exactly 6 heads, at least 8 heads and no heads, and at least 1 head, and the next one is at least not more than 3 heads. So this is a question which is given. So first read the question. What is the meaning of okay? So what is the meaning of what? 8 coins are tossed simultaneously. So you have 8 coins are there. Oh sorry, 10 coins are there. All 10 coins, if I am tossing at same time, all coins, suppose in my hand I am having total 10 coins are there, like 1 rupee coins, 10 1 rupee coins are there. If all coins, if I am tossing at the same time, so I will be getting different results on different coins. Okay, so just observe it. Suppose I am having, this is coin 1, this is coin 2, like this. Total I am having 10 coins. Okay, so just observe this example. So in all these coins I will be getting different results. I cannot say that in all I will get head, in all coins I may get tail. I cannot say. So it depends upon the situation. Sometimes in few coins I may get head and few coins I may get tail. So that depends upon the situation. So now he is asking, first question, what is asking here? Okay, what is the probability of getting what? Exactly 6 heads. Okay, first understand. So now first I am explaining what binomial is. First what you will write here? We know that. So answer I am going to explain here. So first write down the formula for binomial distribution. We know that, okay, binomial distribution, okay, binomial, okay, distribution, binomial distribution for, okay, is what? P of x equal to r successes is equal to NCR P power r q power n minus r. So first understand what is P. P is nothing but probability of, okay, probability of success, okay, and what is Q? Probability of failure, okay, probability of success and probability of failure. You know, in probability of success plus probability of failure is always 1. So this is one important point you need to remember. Okay, next, this is a binomial distribution formula na? So what is the meaning of n? N is nothing but number of trials or number of coins. Okay, number of trials or number of coins. Okay, observations, you can take anything. So what is the meaning of r? Is nothing but r values. So r values lies between 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sir, why you are taking r values from 0 to 10? Because you know, when you do the experiment, you may get 0 time success, 1 time success, 2 time success, 3 time success, 4 time success, all. Okay, now these are what? That is so 0 times. So suppose I am doing, if I am tossing a coin, I will say that exactly I will get an head. So sometimes I may not get head now. So that time my success will be 0. So this is one situation you need to remember. So why we have taken the r values from 0? Because 0 success, 1 success, 2 success, 3 success, out of 10 to 10 coins I will be getting head. So that is my concept. Okay, so you know what is the meaning of r. R means r is always okay, related to the success. Okay, n is nothing but the number of coins or number of observations, and p is nothing but the probability of success, and q is nothing but the failure. So this is the terms you need to remember. So now directly I am going to the first problem. So this is a solution. Just I explained the before concept I explained. So directly what I am going to do now, I am explaining the first problem. First what we have tried here, we know that, okay, we know that binomial distribution, okay, binomial distribution, okay, is
P of x equal to r is equal to NCR P power r q power n minus r. So clear na? So what is given? You write down all the values, given values. N is equal to 10 coins are given. So how many coins are given? 10 coins are given. So write down n value. So okay, next P. P means what? Probability of, what is the meaning of P? P is nothing but probability of, okay, probability of getting tail or head, because in the given problem is talking about the head. So I am saying here, coin problem na 50-50 chances are there. If I am tossing a coin, head, how much chance is there? Tail also you will be getting that much of chance. So 1/2. So next, what is Q here? Q is nothing but probability, okay, probability of getting tail. So समझ में आना, हेड आने का चांस कितना है, टेल आने का भी चांस उतना ही है. तो उसलिए कॉइन का प्रॉब्लम है तो P का 1/2 है तो Q का भी 1/2. अब साइड में रफा करो, 1/2 probability of success प्लस probability of failure, आप ऐड करो तो आपका आंसर 1 आता. सो 1/2 बोलते 2/2, 2 कैंसिल हो गए तो 2/2 होता. 2/2 मतलब 2 कैंसिल हो गए तो क्या, 1 2 1 2 1 तो आंसर 1. So it means what? Always the probability of success plus probability of 1 is always 1. So same thing. Whenever you're getting the coin problem, compulsory you have to take P and Q 1/2 only. So it means as per the formula, N and P Q So R you don't know. So now what is given in the first question? Read the first question. Exactly. So here you आप लोग observe करो. Exactly 6 sets is given. It means in the given problem is asking, okay, is asking what? Exactly 6 sets. So just I'm taking the pen option. Okay, just wait. Okay, now what is given in the problem? So it means R is equal to 6. So इसका मतलब क्या बोल रहा? सपोज मेरे पास 10 कॉइन्स टॉस करा ना, 10 कॉइन्स टॉस करा, ऐसा 10 कॉइन्स टॉस करा, तो इसमें क्या बोल रहा? 6 कॉइन पे, कौन से भी 6 कॉइन पे हेड आना बोल रहा. एग्जैक्टली बोल तो 6 कॉइन पे पक्का हेड आना बोल रहा. तो समझो इस पे हेड आया, ओके. इसमें नहीं बोल सकते ना कौन से भी कॉइन में, तो टोटल काउंट करे तो इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया, सो इसमें भी हेड आया. तो ऐसा अज्यूम करो, ये पिक्चर है. सो कितने हेड्स आए पूरा काउंट करो. टोटल 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 निकले ना. सो नाउ टोटल कितने बोला उन्हें? एग्जैक्टली 6 कॉइन पे, कौन से भी 6 कॉइन, 10 कॉइन उछाला मैं, 10 कॉइन उछालने के बाद कौन से भी 6 कॉइन में कंपलसरी उन्हें बोल रहा 6 हेड आना बोल रहा, आना बोल के पक्का बोल रहा. तो उसके उसलिए R इज इक्वल टू 6 ले लिए. तो उसको क्या करना, अपन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना. तो उसका मतलब P ऑफ x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 इसक्यू बोलते हो एग्जैक्टली चेने का चांस. NCR, N का मतलब 10, C R, R का मतलब 6, नेक्स्ट P का मतलब 1/2. सो पावर क्या है? P पावर R, R का वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 and 1/2 power. So just what I'm doing, I'm replacing in the formula only. I'm not doing any extra thing, just what are the values which are there that I'm replacing in the formula. Next, what I'm doing here, n minus r, n means what? 10 minus 6. Okay, now what I will do here, 10c6 1/2 power 6 into 1/2 power 10 minus 6 is nothing but 4. So ultimately you will get what? 10c6 1/2 power 1/2 bases are equal, power should be added. So 1/2 power 6 plus 4 is you will get 10. So it means 1/2 power 10. So why I am getting 10 here? Bases are equal, power should be added. So you know already a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. So this is the formula I have applied here. Okay. So remember, so 6 plus 4 is 10, 1/2 power 10. So I written. Now you just simplify this, you will get. So actually you know NCR formula. NCR, what is the formula for NCR? N factorial by n minus r factorial into r factorial. So if you go with the formula or whatever the logic I'm saying, just follow this logic. So no need to apply this formula. So you can also use formula, no problem, you'll get the same answer, but I'll be telling you the shortcut now. मैं shortcut बोल रहा हूँ, shortcut को follow करो. इसका मतलब 10c6 है ना, 10 वैल्यू है ना, ऊपर क्या करो, 6 टर्म्स तक पीछे लिखते जाओ. 10 इंटू, ओके, 9 इंटू, 8 इंटू, 7 इंटू, 6 टर्म्स पीछे तक लेके जाओ. 10 से लेके 6 नंबर्स पीछे तक. एक नंबर हो गया, 2 3 4, नेक्स्ट क्या है 6, नेक्स्ट 5, कितने हो गए? 6 हो गया ना. तो 10 से लेके 6 नंबर पीछे तक लेके जाओ. 6 नंबर बोले तो हो गया ना, 10 1 हो गया, 9 2 3 4 5 6 तक हो गया, खत्म. नीचे क्या है? 6 है ना, 6 से 1 तक लेके जाओ.
6 5 4 3 2 1। समझ में आना? नीचे का नंबर को कुछ भी नहीं है, कौन सा भी नंबर दिया, वॉट एवर नंबर इज गिवन फ्रॉम दैट नंबर टू टिल 1 यू टेक इट, एंड ऊपर का नंबर वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, सो फ्रॉम दैट नंबर टू टिल 6 numbers you go back, 6 numbers बोल तो 9 10 9 8 7, only 6 we have tried, okay, you count it and write it, okay. Now I'm cancellation, 6 5 6 6 cancel, 5 5 cancel, and 4 2 ja 8, so directly I'm cancelling it, and 3 1 ja 3 3 ja 9, so what is left here, 10 3 ja 30, 37 ja 210, 210 divided by okay, 210 divided by, here you will be getting what, 1 by 2 whole power 10 na, so 1 by 2 whole power 10 is nothing but 1024, so 2 into 2 into 2 into 2, 10 times you multiply, you will get 1024. If you divide this answer, okay, if you divide this answer, you will get 0.205. so now you tell me what is the chance of getting exactly 6 heads आने का चांस कितना है आपको? अब 10 कॉइन्स उछाले तो एग्जैक्टली 6 एज आने का चांस आपके पास 0.205 है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सिमिलरली जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 8 heads, एटलीस्ट बोल रहा, तो नाउ कम टू द स्क्रीन। सो व्हाट इज गिवन इन द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टेकिंग अगेन पेन, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सो क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 8 heads बोल रहा, 8 heads है, तो अपन को है कॉइन्स कितने हैं, 10 है। ये फर्स्ट कॉइन, सपोज ये फर्स्ट कॉइन है, सेकंड कॉइन है, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ कॉइन, एंड सिक्स्थ कॉइन, सेवेंथ कॉइन, एट्थ कॉइन, 9th कॉइन, 10 कॉइन्स है। तो एटलीस्ट बोल रहा, कम से कम 8 बोल रहा, तो उसका मतलब मिनिमम 8 होना, मिनिमम बोल रहा। मिनिमम का मतलब क्या है, 8 भी आ सकते, 9 को 9 भी आ सकते, 10 भी आ सकते। सो उसका मतलब तो 10 कॉइन्स में मिनिमम 8 कॉइन में कंपलसरी मिनिमम देखो 8 हेड 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 हेड, ओके, हेड मिनिमम 8 बोला, कम से कम 8, एक सिचुएशन है। नहीं तो और एक ऑप्शन क्या है, और एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, 10 कॉइन्स उछाला तो कंपलसरी उन क्या बोल रहा, 9 कॉइन्स में भी हेड आ सकते, तो मिनिमम 8 बोल रहा ना, तो ऐसा हेड 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 हेड, सो 9 कॉइन्स में। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। नहीं तो 10 को 10 कॉइन में भी क्या आ सकता आपको, ओके, 10 को 10 कॉइन में भी आपको क्या आ सकता, हेड आ सकता। सो हेड 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 हेड, सो हेड हेड। अभी अब क्या करना, ये ऑप्शन 3 है, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी में आ सकता है। एटलीस्ट 8 हेड्स बोल रहा, तो मिनिमम 8 भी आ सकते, नहीं तो 9 भी आ सकता, 10 भी आ सकता। तो अपन क्या करना, ये तीनों का आंसर को ऐड करें तो आपका एटलीस्ट 8 का आंसर बन जाता। इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से इज P ऑफ, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट वी हैव टू डू इन द प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या करना, नाउ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे होना बोलते स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या बोल के, probability of getting at least okay 8 heads आने का चांस कितना बोल तो, n का वैल्यू कितना 10 है, r का वैल्यू p का वैल्यू मालूम है, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2, सेम है, प्रॉब्लम नहीं है। एक बार नहीं लिखना, जस्ट क्यों बोल तो पीछे स्लाइड में लिखा था उसलिए फिर से लिखा, ये लिखना जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मालूम है। तो क्या बोल रहा, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, इसका मतलब एटलीस्ट 8 बोले तो 8 भी आ सकते, 8 के ऊपर भी आ सकते, बोल तो 8 आ सकते, 9 आ सकते, 10 आ सकते, ओके ना, उसलिए ये लिखा। तो इसका आंसर क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 8 का आंसर ऐड करना, और p ऑफ x इक्वल टू 9 आए सो आंसर ऐड करना, p ऑफ x इक्वल टू 10 आए सो आंसर का ऐड कर, तो आपको तीनों का आंसर मिला है, तो एटलीस्ट 8 हेड्स का आंसर मिल जाता। तो आप क्या करो, इंडिविजुअली x इक्वल टू 8 का आंसर फाइंड आउट करो, x इक्वल टू 9 का आंसर फाइंड आउट करो, x इक्वल टू 10 का आंसर फाइंड आउट करो। सपोज मैं क्या करूँ, p ऑफ x इक्वल टू 8 का आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्या सा था 10c 8, ओके, p टू द पावर ऑफ 1/2 पावर 8 इंटू 1/2 पावर 8 c 10c8, तो 10 - 8 का मतलब 2 होता, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, क्या बोल के लिखता हूँ 10c8 1/2 पावर 10, सेम 1/2 पावर, मालूम है ना, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, तो डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना अभी बोला ना,
ये क्या है 1/1024 आता। सो 1/2 पावर 10 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 1024 आता इंटू इसको कैसा बोला अभी 8C 10C 8 को कैसा लिखना NCR फैक्टर भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 10 को 8 नंबर्स तक पीछे लेके जाओ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू चलो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट 4 इंटू 7 नेक्स्ट 3 तो 8 नंबर्स पीछे तक लेके जाओ। नेक्स्ट क्या करना 8 को सीधा कुछ भी नहीं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिलेशन करो 8 से लेके 8 9 ये पूरा कहां तक 3 तक कैंसिल हो जाता है। देखो ऊपर 8 से लेके 3 तक कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 2 1 जा 2 5 जा 10 कितना बचा यहाँ पे नहीं कितना होता है 45 होता ना। सो यूल गेट 45 9 4 9 जा 45 बोलते 45 डिवाइडेड बाई 1024 तो कितना आता है आपको ये 0.044 आ गया इसका आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी नहीं हुआ, वी हैव टू डू क्या करना P ऑफ x इक्वल टू 8 9 का भी करना 10 का भी करना, तीनों का ऐड करने का तो आपको ग्रेटर देन 8 का आंसर आता। तो मैं नेक्स्ट क्या करना P ऑफ x इक्वल टू 8 का कर रहा हूँ। सो आई टेक द ऑप्शन। सो P ऑफ x इक्वल टू 9 का कर रहा हूँ। 9 का कैसा करना मालूम है ना 10C9 सो 1 बाई डायरेक्टली मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1/2 पर 10 ही आता है इसको ओके इंडिविजुअली सेपरेट करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो जा रहा है वीडियो में। सो एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करना 10C इसको कैसे लिखना 10C बोल तो 10 इंटू बोलो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू लिखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 तक लिखो। लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लॉजिक है डायरेक्ट ये पूरा कैंसिल हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ऊपर क्या बचा इंटू 1/1024 आंसर रहता। तो अभी क्या है बचा कितना यहाँ पे आपको 10 बचा ना 10/1024 अगर आप डिवाइड करें तो कितना आपको 0.01 आता। ओके सो सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू P ऑफ x इक्वल टू 10 इज इक्वल टू कितना 10C ओके 10C 10 सो इज इक्वल टू 1 टू द पावर ऑफ 10 सेम आता। तो 10C 10 आपको मालूम है ना NCN इसको ऑलवेज NCN ऑलवेज आंसर 1। तो यहाँ पे 10C 10 आया ये फॉर्मूला है ये अलग अलग। तो 1 इंटू 1/1024 इज ऑलवेज आंसर क्या 1 इंटू 1024 बोलते 1/1024 ही आता। तो इसका आंसर कितना होता डायरेक्टली 0.001। सो दिस आंसर इज ऑल्सो कंप्लीट। तो अब बोलो देयरफॉर P ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 का आंसर कितना आया 0.044 ओके। सो इसका आंसर कितना है मेरे को वो आंसर ऐड करना। सो इधर लिखना। सो आई विल राइट द आंसर जस्ट आई विल टेक द पेन ऑप्शन। सो प्लीज दिस आर वेरी 0.044 आंसर आया। फिर 9 का आंसर कितना आया 0.01 आया ओके 0.01 आया प्लस इसका 10 का आंसर कितना है 0.001 आया। तो अब पूरा का ऐड करें तो आपको 0.055। सो दिस इज अबाउट द P ऑफ x ग्रेटर देन 8 बोल तो 8 आने का चांस 8 और 8 के ऊपर आने का चांस इतना है बोल के मालूम। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 नो हेड्स बोल रहा। असल मेरे को हेड ही नहीं आना बोल रहा। तो क्या उसका मतलब क्या है ओके उसका मतलब क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज सेइंग यू नो व्हेन आई एम टॉसिंग 10 कॉइन्स व्हेन आई टॉस 10 कॉइन्स आई शुड नॉट गेट एनी हेड नाउ। तो हेड आना ही नहीं बोल रहा। तो सो R इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है 1 हेड आने का चांस। R इक्वल टू 2 का मतलब क्या है 2 हेड्स आने का चांस। आउट ऑफ 10 कॉइन्स में 2 हेड्स आना। इफ R इक्वल टू 3 का मतलब क्या है आउट ऑफ 10 कॉइन्स आई शुड गेट 3 हेड्स। तो अभी क्या बोला क्वेश्चन में नो हेड्स बोल रहा। नो हेड्स का मतलब क्या है ऐसा हेड्स ही नहीं आना। तो उसका मतलब R वैल्यू क्या होता 0 का मतलब क्या है आई शुड नॉट गेट एनी हेड नाउ ओके। तो अभी क्या हो गया फॉर्मूला 10C0 1/2 पावर 0 इंटू 1/2 पावर 10 माइनस 0 तो क्या होता है 10C1 आपको मालूम है ना ये इसका मालूम है ना NCN का फॉर्मूला क्या है ओके NC0 का फॉर्मूला क्या है
NC0 ऑलवेज व्हाट 1, ये भी आंसर 1 है, तो 1 इंटू, सो लिखो NC0 इज ऑलवेज 1, तो क्या है 1 इंटू, ओके 1 इंटू 1/2 पावर 10, 1/2 पावर 10, इसका मतलब क्या है 1/1024 ही आता है इसको भी, तो डिवाइड करो, इसको क्या होता है 0.001, तो आपको ये आंसर हो गया। सो दिस इज अ नो हेड्स आने का चांस ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फोर्थ क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 1 हेड बोल रहा, तो यहाँ पे अच्छा समझो, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ कि वो तो बड़ा प्रॉब्लम है, एटलीस्ट ओके 1 हेड बोल रहा, तो यहाँ पे देख समझ के करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पे अच्छा सुनो 1 हेड, ओके तो उसका मतलब क्या बोल रहा मालूम है, 10 कॉइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड बोल, तो एक हेड भी आ सकता, ओके एक सिचुएशन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सो फिर से ना ड्रॉ करो इसको, या तो मेरे को दो हेड्स आ सकते, ये सेकंड ऑप्शन है, या तो 3 कॉइन में हेड आ सकता, ये मेरा थर्ड ऑप्शन है। ऐसा क्या है 1 हेड भी आने का चांस है। अब 10 कॉइन्स उछाला, समझो उछाला के बाद सब में टेल आया, एक में हेड आया, एक मेरा वो एक ऑप्शन है, या तो मैं 10 कॉइन्स उछालने के बाद 2 कॉइन में हेड आया, बाकी को पूरा टेल आया, एक भी मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट एक बार उछाला, अभी उसमें मेरे को 3 हेड आया, बाकी को पूरा टेल आया। अब नेक्स्ट टाइम उछाला तो मेरे को 4 टेल आया, ओके 4 हेड आया, बाकी का पूरा 6 कॉइन में टेल आया। ऐसा मेरे को एटलीस्ट 1 हेड बोला, तो कंपलसरी क्या बोल रहा हूँ, एक हेड R = 1 सक्सेस कंपलसरी रहना बोला, या 1 सक्सेस भी रह सकता, 2 सक्सेस भी रह सकता, 3 सक्सेस भी रह सकता, 4 सक्सेस भी, तो 4 हेड्स भी आ सकते, 5 हेड्स भी आ सकते, 6 हेड्स भी आ सकते, 7 हेड्स भी आ सकते, 8 हेड्स भी आ सकते, 9 हेड्स भी आ सकते, 10 को 10 हेड्स भी आ सकते, तो मिनिमम 1 हेड आ रहा बोल रहा, मिनिमम 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 या 10 तक आ सकता। सर इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसा करना सर, बोल तो आपको मालूम है यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई करना, कैसा मालूम, P of x > 1, वही है ना, x > 1 से लेके 10 तक करना, 1 से लेके 10 तक, उतना के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी आंसर 1 है, तो मालूम है T + Q क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फेलियर कितना 1 है। ये 1 में से मैं क्या निकालना, P of x = यू नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन R वैल्यू कहां से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इसका मतलब सर 0 क्या है, मतलब 0 सक्सेस। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, मिनिमम 1 सक्सेस बोल रहा, तो ये पूर्ण का आंसर लेके आना, तो ये पूर्ण का आंसर लेके आने का मैं क्या कर देता हूँ, एक 0 को हटा देता हूँ, ये 0 हटा देता, तो पूरा आंसर पूरा क्या है 1 से लेके 10 तक आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, तो जो भी 1 में से, तो ये पूर्ण का 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 10 तक आप आंसर करते ना, इसका आंसर पूरा मेरा 1 रहता, तो ये 1 में से आंसर प्रोबेबिलिटी 1 में से ये 0 का 1 का मैं फाइंड आउट करके ये 1 में से निकाल देना, जब बचे से पूरा आंसर 1 सक्सेस का रहता, 2 सक्सेस का रहता, 3 सक्सेस का, 4 सक्सेस का, 5 सक्सेस का पूर्ण का रहता, तो इसलिए यहाँ पे क्या करा 1 - 10C 0, सो 1/2 पावर ओके 0 इंटू 1/2 पावर 10, 10 - 0, 10 - 0 का मतलब क्या है 1 - 10C 0 का आंसर 1 है, 1/2 पावर 2 ओके एनी पावर 0 इज 1, सो ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है 10 to the power 0, तो ये पूरा को मिला के 1/2, तो आपको मालूम है 1 - 1/1024, 1/1024 अगर ये करे तो क्या होता, 1 में से अब भी डिवाइड करे ना इसको 0.001 है, तो ये पूरा निकल तो कितना होता 0.99, सो आपको आंसर कितना आता 0.99, सो 1 आने का सक्सेस 1 और मोर देन 1 आने का चांस 0.99 है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर okay, question number 5. So this is also very very important, समझ में आना, the questions are very very easy, just only the thing is now question क्या पूछ रहा, एटलीस्ट 1 हो गया, अभी क्या बोला not more than 3, so this is also one of the very very important questions को समझ के करो जब भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता। so just I don't have new slide, so what I will do, I will take the another slide, just wait a minute, just wait, I'm taking the new slide. Okay, now I'm taking the slide now. So क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट मोर देन, सो नाउ प्लीज जस्ट ऑब्जर्व करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर
Okay, this is question number 5. So I am explaining the question number 5. Now what is asking? Probability of obtaining not more than 3. तो उसका मतलब not क्या बोला क्वेश्चन में? अपन लिखना probability of okay obtaining okay not more than 3, not more than okay more than 3 heads, more than 3 heads बोल रहा क्वेश्चन में. 3 heads बोले तो मतलब क्या है? 10 कॉइन्स है आपके पास, ऐसा 10 कॉइन्स है, 3 नॉट मोर देन 3 बोल रहा. नॉट मोर देन 3 बोल तो आपको मिनिमम हेड क्या हो सकता? 0 हेड भी आ सकता, ओके 1 हेड भी आ सकता, 2 हेड भी आ सकता, ओके 3 हेड भी आ सकता, मगर 3 से ज्यादा हेड्स नहीं आना बोल रहा. तो समझ में आना? 3 हेड्स बोल रहा, मिनिमम मैक्सिमम 3 बोल तो आर वैल्यू कहां से स्टार्ट होता? 0 हेड्स आ सकता, 1 हेड आ सकता, 2 हेड्स आ सकता, 3 हेड से आ सकता. क्वेश्चन क्यों 3 तक के लेना बोल तो नॉट मोर देन 3 बोला. तो आपको सक्सेस मिलना, अगर 10 कॉइन्स डाला, मेरे को एक बार भी एक कौन सा भी 10 कॉइन्स में हेड नहीं आया, वो ये 0 है. सपोज मैं 10 कॉइन्स टॉस करा नेक्स्ट टाइम, तो मिनिमम मेरे को एक हेड आया, आउट ऑफ 10 कॉइन्स में एक में हेड आया, ये एक कॉइन में हेड आने का चांस है. ये क्या है? 10 कॉइन्स उछाला तो मेरे को 2 कॉइन में हेड आया, बाकी का पूरा 8 कॉइन्स में टेल आया. और क्या बोला? बाकी का मैं 10 कॉइन्स उछाला, उसमें मैक्सिमम मेरे को कितना आया? 3 कॉइन्स के ऊपर हेड आया, ओके बाकी का पूरा 7 कॉइन्स टेल आया. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो इसके लिए अपन क्या करना? सो क्या लिखना? P ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 3. x लेस देन आर इक्वल टू 3 का मतलब P का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता? P इक्वल टू 0 से हो सकता, और P ऑफ x इक्वल टू 1 आंसर, ओके द स्पेस इज नॉट देयर, सो डाउन आई एम राइटिंग हियर P ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्लस P ऑफ x इक्वल टू 3. सो यू गॉट अ क्लैरिटी नाउ? ये 3 हो गए, चारों का वैल्यू करके करे तो आपका प्रॉब्लम हो जाता. तो आपको ऑलरेडी ओके अब इसको करे तो क्या होता? इसको ऑलरेडी ऊपर करे ना, नो हेड्स का कर दिया ना ऊपर, वो ऊपर से मैं उसका आंसर लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट. नो हेड्स, P ऑफ x इक्वल 0 का मतलब क्या है? नो हेड्स आने का चांस. ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर ऊपर में कर दिया, तो इसका आंसर आपको 0.001 आ जाता. सो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन दिस प्रॉब्लम. सो इसका क्या है? आई नीड टू डू नाउ 10c1 1/2 पावर. सो 1/2 पावर 10 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, सबको यही आता, आपको प्रॉब्लम नहीं है. NC1 का मतलब क्या है? ऑलवेज आंसर 1 ही होता, ओके NC1 सॉरी 1 नहीं, आंसर NC1 को आंसर n आता. दिस इज अ फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. सो अभी 10C1 का मतलब क्या है? सॉरी ये ओके बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्या है? P ऑफ x इक्वल टू सो P ऑफ x इक्वल टू नेक्स्ट P ऑफ x इक्वल टू 2 करना, ओके. सो 10C2 1/2 पावर 10, इसको भी 10 आता. नेक्स्ट क्या करना? 10C3 1/2 पावर 10. सो सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर क्या है? 0.001, ओके प्लस 10C1 का मतलब 10 इंटू 1024. सो प्लस 10C2 का मतलब क्या बोला मैं? 10C2 का डिवाइड करो. 10C2 को कैसा लिखना? 10 इंटू 2 नंबर्स लिखना, 10 इंटू 9 रिवर्स में, नेक्स्ट 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 5 जा 10, सो 45 होता. 45 बाई 1024 प्लस 10C3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 कैंसल एंड 2 1 जा 2 5 जा कैंसल. सो हियर यू विल गेट 1024, ओके. सो अनुश्री, okay now you'll get here 0.001 plus okay you'll there 10 by 1024 plus 45 by 1024 plus 45 by 1024. So if you count it, so this you'll get 0.001 already. So this will be you'll get 0.01 you'll get, plus this will be okay 0. This will be 0. So this just check it here, okay this one ये क्या आप चेक करो, ये 1 ये हो गया, ठीक है. ये 10C2 का मतलब 10 इंटू 9, ओके राइट. 2 1 जा 2 5 जा 10 9 45 बाई ये हो गया. नेक्स्ट ये काउंट करो 9 इंटू ओके 3, यहाँ पे नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 1 जा कैंसल. सो you'll get this total.
सो दिस 3 है ना, चेक करो फॉर्मूलास, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एवरीथिंग विल बी गोज रॉन्ग. सो 10 इंटू 9 इंटू सॉरी 8 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक करा मैं. 10 इंटू 9 इंटू 8 क्या है इसका, 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 5 जा 9, ये बचा क्या है इंटू 8 ऐसी 6. तो इसका मतलब कितना होता है ये आपको 210, ये 120 होता 120. सो डिवाइड करने के बाद आपको ये आंसर 0.044 आ गया. ओके, सो टोटल सॉरी ये 0.044 आ गया इसका 45 का. ओके, नेक्स्ट प्लस ये 0.12 आ गया. तो इफ टोटल काउंट करें तो 0.175. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर यू. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द प्रॉब्लम. So that is the probability of, just go to the question. Now at least 4x बोल रहा, तो आप I think you can do it this problem because at least 6x का प्रॉब्लम क्या करे exactly नहीं. So at least 8x का प्रॉब्लम करे ना, यहाँ पे at least 4x का करना. तो यहाँ पे सुनो क्या करना है यहाँ पे, just tell me what we have to do now. Just I am taking the pen option. Now last question है question number 6. question number 6 है, क्या बोल रहा, probability of getting okay at least okay 4 heads और 4 heads ये क्वेश्चन में दिया. तो इसका मतलब क्या है, P of x ग्रेटर देन 4. तो 4 heads एटलीस्ट 4 बोल रहा, मिनिमम 4. तो 4 भी आ सकते हैं, 4 heads भी आ सकते हैं, 5 heads भी आ सकता, 6 heads भी आ सकता. तो उतना बड़ा प्रॉब्लम करने के लिए क्या करेंगे मालूम, आरवेल क्या बोल रहा, 4 heads भी आ सकता, 5 heads भी आ सकता, 6 heads भी आ सकता, 7 heads भी आ सकता, 8 heads भी आ सकता, 9 heads भी आ सकता, 10 heads भी आ सकता. तो नॉर्मली आर वैल्यूज कहाँ पे हो सकता, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस, 7 सक्सेस, 8 सक्सेस, 9 सक्सेस, 10 सक्सेस. तो 4 से लेके 10 तक करना. उसके अच्छा अपन क्या करेंगे मालूम, 0 से लेके 3 का करके ये तीनों का आंसर अगर इसमें से ओके 1 में से निकाले, समझो 1 में से 0 1 2 3 का आंसर निकाले तो बाकी का आंसर पूरा 4 to 10 का ही रहता. तो इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ ओके x लेस देन आर इक्वल टू 3. तो उसका मतलब क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ओके पी ऑफ क्या करना ओके सॉरी यहाँ पे लिखो पी ऑफ x इक्वल टू 3 0 का करना प्लस लेस देन 3 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 का करना. सो P ऑफ x इक्वल टू 2 का करना, P ऑफ x इक्वल टू 3 का करना. तो अभी क्या है, लेस देन 3 एटलीस्ट 3 का प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन नंबर 5 में. अभी करे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नॉट मोर देन 3 का करे ना, यही आंसर. अपन इसको यूज कर सकते. नॉट मोर देन 3 बोल तो 3 सक्सेस का आने का, तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में कर दिया. तो आप नो नीड टू डू इट नाउ. तो आपको पेशेंस है तो फिर से करो, प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज ऐसा नहीं करना, क्यों बोल तो इतने प्रॉब्लम मिला के दिया तो क्यों लिंक लगा के दिया क्वेश्चन में. ओके समझ में ना. तो यहाँ पे क्या लिखना, 1 माइनस, इससे पहले प्रॉब्लम का आंसर कितना है 0.0175. सो आप सेपरेट करें तो आपका आंसर क्या आता 0.825. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. सो विद दिस यू विल गेट द final question. So just here, so actually okay I need to write one more 0 here. Okay, so count करें तो आपको ये 0 आता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 आना था, भूल गया. What I will write here, I take the pen option. So आंसर यहाँ पे 0. So 0.0175 यही आंसर. यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लेस देन 3 बोल तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस का आंसर लगाया. तो 1 में से निकाला तो जो भी आंसर आया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 heads का रहता. तो 0 1 2 3 को निकाला तो बाकी का आंसर क्या 4 5 6 7 8 to 10 है. तो क्यों बोलते इतने नंबर्स करने का, मैं 4 नंबर कर दिया. अगर यही करे तो आप क्या करना, 4 का करना, 5 का करना, 6 का करना, 7 का करना, 8 का करना, 9 का करना, 10 का करना. इतनों को करके इतनों को ऐड करने का मैं 4 का करके उसमें से निकाल दिया. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दैट इज अबाउट द normal. So this is a model number 1. So in the next video will be model number 2. Please subscribe my channel Anu Computer Education to get further update. मेरा ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आऊंगा. So 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. ओके.